السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کے سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ کسی کے کوئی ذہن میں بات ہو تو معلوم ہو۔ روزے بیماری میں چھوٹے فدیہ دیں اب صحت ہے کیا روزے بھی رکھوں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ بیماری میں روزے چھوٹے، اس ٹائم فدیہ دے دیا تھا اور اب الحمدللہ صحت ہے، تو کیا وہ روزے چھوٹے ہوئے رکھ لیں؟ بہت سعادت کی بات ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے یہی بات کہی کہ اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو اور روزے چھوڑ دو، اور اگر تم اتنے ضعیف ہو تو پھر فدیہ دے دو، لیکن اگر تم روزے رکھ لو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ فدیہ دینے کے بعد بھی اگر روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ ڈبل اجر ملے گا آپ کو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ نے صحت دے کے دوبارہ سے تحفہ دے دیا، تو آپ اس کے شکرانے میں روزہ رکھ لیں میرے بھائی، بہت اجر کی بات ہوگی۔ رات کو دیر سے مزدوری کر کے آ کر سو جاتا ہوں، کئی بار فجر نکل جاتی ہے، دیر سے پڑھ لیتا ہوں، کیا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مزدوری کرتے ہیں، رات کو دیر تک وہاں سے تھک کے آ کے سو گئے، صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو کیا دیر سے پڑھ لیں؟ بھائی ایک واقعہ ایسا ملتا تو ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہی اپنا عذر پیش کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ان کی جو وائف تھی انہوں نے آ کے 3 شکایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی اپنے ہسبینڈ کی، تو حضور نے پھر انہیں بلا بھیجا۔ ایک تو شکایت یہ تھی کہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور ایک شکایت یہ تھی کہ مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے، تیسری شکایت یہ تھی کہ صبح کو دیر تک سوتے اور اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب نبی نے انہیں بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بتایا کہ حضور یہ نفل نمازیں بہت پڑھتی ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے، میری ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں کر پاتی۔ تو حضور نے ان کی اس وائف کو منع کر دیا کہ آپ بالکل ان کی اجازت کے بغیر نفلی نماز نہیں پڑھیں گی۔ اس طرح روزے کا ہی معاملہ ہوا، اس میں بھی انہوں نے یہ وقت بتائی کہ حضور یہ مطلب ایک دن چھوڑ کے یا روز ہی روزے رکھتی ہے اور مجھے بہت دقت ہوتی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت رہتی ہے۔ تو حضور نے انہیں نفلی روزوں سے ہی منع کر دیا کہ بنا اپنے ہسبینڈ کے مرضی کے آپ نفلی روزہ نہیں رکھیں گی۔ تیسرا یہ معاملہ تھا، تب انہوں نے اپنا عذر بتایا کہ حضور میں رات کو تھک کے آتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہوں، سارا دن کا تھکا ہوا، رات کو دیر سے گھر پہنچتا ہوں اور میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، پیدل آنا جانا، تھکا ہوتا ہوں، تو آنکھ لگ جاتی ہے، تو صبح کو جب بھی آنکھ کھلتی ہے میں اٹھتے ہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ حضور نے ہاں بس اٹھتے ہی پڑھ لیا کر، ایک یہ عذر ہے تو، لیکن آپ اپنی کوشش کریں کہ آپ اٹھ کے پڑھ کے دوبارہ سو جایا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگر جتنا ٹائم سے نماز پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ایک واقعہ بتا دیا، لیکن آپ کی ہمت کا اللہ کو پتہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب اللہ نے آپ کے ذمے ایسی روزی لگائی ہوئی ہے، محنت کشی کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی نمازیں بھی ایسی لے لے گا۔ فون پر منگیتر سے روزے میں بات کرنے سے روزہ رہے گا؟ ان کا سوال یہ ہے روزے میں منگیتر سے بات کرنے پہ کیا روزہ رہے گا؟ روزہ تو اس بات سے نہیں ٹوٹتا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، لیکن بات کرنے کی منائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ چھپی آشنائیوں کو منع کیا ہے۔ جب آپ کی منگیتر ہے نا، آپ پتہ نہیں کس حد تک پہنچ جاتے ہوں گے بات چیت میں بھی، اور حضور نے فرمایا جو روزہ رکھ کے فحش کلام نہ چھوڑے وہ اس کا بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی منگیتر آپ کی نگاہ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس سے نکاح کر لو، پھر تو آپ خوب بات کر لو۔ بیویوں سے تو اجازت ہے باتیں کرنے کی آپ کو، لیکن اس میں بھی بچنا ہے، فحش گوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اور منگیتر سے تو بات کرنے کا حکم نہیں ہے، روزے کی حالت میں کیا بنا روزے کے کیا آپ تو، ہم جس اس ٹائم معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں تو ادھر منگنی ہوئی، ادھر بات چیت شروع ہوئی، اور کس حد تک گزر جاتے ہیں بچے مجھے آگے بتاتے ہیں۔ ابھی خدا نہ خواستہ کچھ کشیدگی ہو جائے دونوں خاندانوں میں تو پھر وہ رشتہ ٹوٹتا ہے، اس کے بعد وہ کچے چٹے کھلتے ہیں اور اس بچی کی ساری پرائیویسی جو ہے اس مرد کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت بچنا چاہیے۔ اگر آپ سے نہیں رہا جاتا بنا بات کیے تو آپ دونوں نکاح کر لیں، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے بہت الٹیاں آئیں تو کیا میرا روزہ رہا؟ ان کا سوال یہ الٹیاں بہت آئیں تو کیا روزہ رہا؟ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا الٹیوں سے۔ آپ کو اگر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تو آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جو بعد میں پورا کرنے کا حکم ہے۔ تو اگر آپ کو اتنی الٹی آ گئی کہ آپ کا جو ہے حالت خراب ہو گئی تو آپ کو روزہ توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ کا روزہ ویسے نہیں ٹوٹا الٹی آنے سے۔ شوہر نے زبردستی روزے کی حالت میں مستری کی، اب میں روزے کی قضا کروں یا فدیہ دوں، کیا دونوں کو فدیہ دینا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ان کے شوہر نے روزے کی حالت میں زبردستی ہم مستری کی تو روزہ خراب ہو گیا دونوں کا، تو کیا دونوں فدیہ دیں اور میں کیا کروں؟ بیٹی آپ کا تو کوئی اس میں وہی نہیں ہے رول، آپ تو بالکل
बरी हैं, आप तो एक रोज़ा रख लेना उसके बदले में, रोज़ा तो आपका ख़राब हो गया। लेकिन पकड़ तो शौहर की होगी, फिदिया उन्हें देना है। या तो वो दो गुलाम आज़ाद करेंगे, एक अपनी तरफ से एक आपकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती की, आपकी कोई उसमें ख्वाहिश नहीं थी। दूसरे, या फिर वो 60-60 रोज़े रखे दोनों की तरफ से, और या फिर 60-60 मिस्किनों को खाना खिलाएं दोनों की तरफ से। लेकिन करेंगे वही, आपका कोई बीच नहीं है इसमें बिल्कुल। आप तो एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रख देना बस। क्या फ़र्ज नमाज एक ही वक्त की 2 बार पढ़ सकते हैं? एक बार घर पर पढ़ ली, फिर कहीं जमात मिली तो दोबारा पढ़ ली। इनका सवाल यह है, क्या फ़र्ज नमाज एक बार 2 बार में पढ़ सकते हैं, कि एक बार घर पे पढ़ लिया फिर कहीं जमात मिली तो पढ़। बिल्कुल, एक बार ऐसा हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो पीछे 2-3 साहबा बैठे थे, उनसे सलाम फेर के जब हुजूर ने देखा कि इन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी, तो उनसे पूछा कि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी आज? कह लें हमने घर पढ़ ली थी। कोई उधर होगा उनका, या सफ़र से आए होंगे, या कोई बात होगी। तो हुजूर ने, कभी ऐसा हो तो तुम शामिल हो जाया करो, नफलों की नियत कर लिया करो। तो बिल्कुल ये बात इस तरह से साबित है। तो कोई कभी ऐसा मौका मिले तो आप शामिल हो जाया करो जमात में, उससे इंशाअल्लाह आपको जमात का सवाब भी मिलेगा, और आपकी नमाज का भी आपको सवाब मिलेगा जो आपने जमात से पढ़ी। क्या कर्जदार ज़कात मांग सकता है? इनका सवाल है, क्या कर्जदार ज़कात मांग सकता है? भाई, अगर उसके सारे खर्चे वर्चे चल रहे हैं फर्स्ट क्लास, और वो कर्जा नहीं उतार रहा, घर में बैलेंस भी है, सोना भी है और कर्जा भी है, तो या तो वो सारा माल निपटा के उसके बाद कर्जा उतार दे, उसके बाद भी अगर कर्जा बचे तो वो वाकई मांग सकता है, अगर वो मुस्तैद है। लेकिन अगर सारी ऐश चल रही है और बैंकों के कर्जे लिए हुए हैं, लोगों से कर्जे लिए हुए हैं, बिजनेस के कर्जे हैं, और वो गाड़ियों में घूम रहा है अम्बाला वगैरह में, और खूब अच्छी तरह से खा पी रहा है, घूम फिर रहा है, और जो फॉरेन कंट्रीज़ के टूर्स हैं वो भी लगा रहे, तो फिर तो ये बात नहीं हो सकती है वो चीज़ से ज़कात लेके कर्ज उतार दें। उन्हें तो पहले अपने जो पास सरप्लस है उनके पास, सोना चांदी कैश वगैरह या कोई जदाद हो, उसे बेच के पहले अपना कर्ज उतार दें। उसके बाद भी अगर कर्ज उनकी तरफ बचता है तो बिल्कुल उन्हें इजाज़त है। कर्ज की जो एक सूरह तौबा आयत 60 में जो मद बयान हुई है ज़कात की, उसमें कर्ज उतरवाना भी है। क्या एतकाफ़ में मस्जिद में घर वालों से राब्ते को मोबाइल रख लें? इनका सवाल यह है, मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे क्या घर वालों से राब्ते के लिए मोबाइल रख लें? भाई, कोई हर्ज नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन आप बैठे ही क्यों, फिर आप बैठते ही ना। असल तो एहतिकाफ का मकसद क्या है, आप उसकी रूह समझो ना, कि आप तमाम तर दुनिया से कट के अपने घर वालों से, अपने कारोबार से, और आप अल्लाह के दर पे पड़ के जाके, अगर आप वहाँ भी अपने घर वालों के राब्ते में हैं, तो फिर तो आपका क्या एहतिकाफ हुआ। मतलब मैं तो आपको फतवा बता रहा हूँ कि उसमें यह है कि आप रख सकते हो, कोई ज़रूरत पेश आए तो आप बात भी कर सकते हो खोल के उसे। लेकिन मेरी राय यह है कि आप ना रखो, और अगर कोई बहुत मजबूरी हो, वालदा बीमार है, बीवी बीमार है, बच्चों की बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी तबीयत का, तो उसे आप बंद रखो। कभी कोई इमरजेंसी हुई तो अपना खोल लिया, उनकी कोई काम आपसे पड़ जाए, वो कोई ख़बर आपको कराए। वरना मेरे ख्याल में तो आपको 10 दिन आप अल्लाह के दर पे पड़ गए, ये समझो कि आप जैसे इस दुनिया में हैं ही नहीं 10 दिन। क्योंकि जब आप यहाँ से चले जाएंगे तब भी घर वालों के काम होंगे, तब भी अल्लाह उनके काम कराएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप अल्लाह के दर पे पड़े रहो और अल्लाह अल्लाह करते रहो जिस मकसद से आपने एहतिकाफ किया है। हमें कैसे पता लगेगा कि आज लैलतुल कद्र है? इनका सवाल यह है कि हमें कैसे पता लगेगा कि आज लैलतुल कद्र है। भाई, कुछ निशानियाँ कुछ बुजुर्गों ने बताई तो हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई। और मैं तो कहता हूँ कि देखना ही नहीं चाहिए। पहले मैं भी कुछ अंदाज़ा करता था जब मैं एहतिकाफ में बैठता था, लेकिन जब से मुझे पता लगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही अल्लाह ने बुला दिया कि वो कौन सी रात है, तो हमारी क्या मजाल कि हम ये तलाश करेंगे वो कौन सी रात है। हम तो अपने नबी के पीछे हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला दिया, हुजूर ने फरमाया कि ताक रातों में से तलाश करो, तो आप 5 ताक रातें जो हैं उनमें जाके आखिरी पूरे अशरे में जाके, हुजूर तो आखिरी अशरे में बहुत एहतमाम करते थे इबादत का, तो अगर आप सारी रात पूरे अशरे में जागते हैं तो लाजमी बात है, नबी की हदीस पाक से पता लगता है कि आपको लैलतुल कद्र मिल जाएगी, तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं अलामत है। तो जो चीज़ अल्लाह ने अपने रसूल से छुपा दी, तो वो हमें भी इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उसकी तलाश करें, बल्कि कोशिश ये करें कि हम उन रातों में जागें जिससे हमें कन्फर्म वो रात जो है वो मिल जाए, जो 1000 महीनों से अफजल है। क्या कोई वित्र ना पढ़े तो इशा हो जाएगी? इनका सवाल ये है, क्या कोई वित्र ना पढ़े तो ईशा हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई ईशा, ये तो नफली नमाज है वितर। मगर ये मैं आपको बता दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वितर नहीं छोड़े, यहाँ तक कि सफ़र में भी वितर नहीं छोड़ते थे। एक तो फजर की सुन्नत है और एक वितर रात के, तो इसलिए मेरे नज़दीक वितर छोड़नी नहीं चाहिए। हज़रत अली का कौल ये है कि वितर वाकई नफली नमाज है,
मगर कोशिश करके तुम इसे छोड़ा ना करो। लेकिन अगर कोई छोड़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, जो आपका सवाल है। क्योंकि एक बार एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए बैत करने और कहा कि मैं इस्लाम में आना चाहता हूँ और तो मुझे क्या करना चाहिए जो मेरी निजात हो जाए। उन्होंने 5 वक्त की फ़र्ज नमाजें और 30 फ़र्ज रोज़े, उसके बाद हज और ज़कात जब अभी तक फ़र्ज ही नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा हुजूर मैं 5 नमाजें वक्त पे पढ़ूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं 30 रोज़े हमेशा रखूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के और फ़र्ज नमाज और फ़र्ज रोज़ों की बात की उन्होंने, वो चल दिए। तो हुजूर ने उन्हें जाता देख के सहाबा से कहा जो बैठे हुए थे कि जिसे जन्नती देखना वो देख लो, वो जा रहा है। तो इसलिए ये साबित हो गई बात कि अगर कोई फ़र्ज भी पढ़ देता है लेकिन उसमें कोई कोताही ना हो तो वो निजात के लिए काफ़ी है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि वो कभी वितर छोड़ने नहीं थे। तो मेरे नज़दीक तो ये सुन्नत मौक़दा हो गया। अगर शोहर बीवी का सोना अलग अलग हो 8 तोला के करीब, फिर ज़कात किस पर होगी? इनका सवाल यह है, शौहर और बीवी के पास अलग अलग सोना है 8 तोले के करीब, किसी के पास 6 मान लो, किसी के पास 2, तो ज़कात किस पे होगी? एक पे भी नहीं होगी अगर अलग अलग है वाकई। लेकिन ये कंफर्म कर लें क्योंकि मियाँ बीवी की चीज़ एक ही होती है। लेकिन अगर घर का आपका माहौल ऐसा है, ज़्यादा कशीदगी है और आपने सोना भी अलग अलग कर लिया, कैश भी अलग अलग कर लिया, आपकी बीवी जॉब करती है, तो फिर आपके ऊपर कोई ज़कात नहीं है दोनों में से किसी पे। लेकिन अगर आपने ज़कात से बचने के लिए ये मामला कर लिया, प्रोपोगेंडा कर दिया कि भाई हमारा अलग अलग है सोना, तो अल्लाह को तो सारा पता है, हमारे दिलों का हाल पता है। तो मैं तो कहता हूँ अपने साथियों से कि अल्लाह की राह में बचने की कोशिश ना किया करो, बल्कि फंसने की कोशिश किया करो। तो आप लोग अपनी कशीदगी दूर करें और सोने को एक समझें, 8 तोला करके उससे ज़कात दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई अपने भाई को फितरा दे सकता है? इनका सवाल है क्या भाई अपने भाई को फितरा दे सकता है? बिल्कुल। अगर भाई मुस्तहिक है, इतना गरीब है कि उसके यहाँ खाने को भी नहीं है, तो बिल्कुल आपको फितरा अपना उसे ही देना चाहिए। अव्वल तो आप अगर सगे भाई हो तो सगे भाइयों का क्या हिसाब यार, जो चीज़ आपके पास है सब लुटा दो अपने भाई पे। फितराने की तो बात छोड़ दो, फितराना तो आप देना गरीबों को। आप तो अपने पाक माल में से उसे जो है खूब उसे इतना नवाज दो कि उसका घर जो है भर जाए, उसके बच्चे बेहतरीन तरीके से ईद मनाएं, और आप खुद खरीदारी करके ला के दो। हर माशरे में जो है इस तरह के गरीब और अमीर होते हैं, लेकिन भाइयों भाइयों कोई हिसाब नहीं होता। एक माँ के बदन में पले हुए हो आप, एक दस्तरखान पे खा के बड़े हुए हो, तो आपको तो बहुत ख्याल करना चाहिए। मेरे नज़दीक तो ये सवाल सुन के मुझे तो बहुत तकलीफ हुई, एक भाई दूसरे भाई को फितराने की बात करे। बिल्कुल नहीं, आप बल्कि अपने पाक माल में से चाहे खामोशी दें उसे इस तरह से कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, और अच्छी खासी रकम उसे पकड़ा दें कि अपने बच्चों के कपड़े, अपनी बीवी के कपड़े, अपने कपड़े बना ले और बेहतरीन तरीके से ईद मनाएं। क्या इस्लाम में फैमिली प्लानिंग हराम है? इनका सवाल यह है क्या इस्लाम में फैमिली प्लानिंग हराम है? नहीं भाई, इस्लाम में तो फैमिली प्लानिंग की इजाज़त है, और बल्कि आपको तो फैमिली प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। हम जो इस्लाम की बात करते हैं फैमिली प्लानिंग मना करने की, उसमें कुरान की आयत है कि जो लोग इस डर से अपने बच्चों को कत्ल कर दें कि उन्हें कौन खिलाएगा और हम कहाँ से इन्हें खिलाएंगे, तो वो मफहूम है उन आयतों का। एक बार नहीं कई बार कहा अल्लाह ने कुरान में। तो ऐसे लोगों को तो फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिज़्क जो है अल्लाह कहता है कि तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चों को भी हम देते हैं। तो अगर रिज़्क की कमी की वजह से आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं वो तो हराम है। लेकिन बच्चों की तरबियत, आप गैप और आजकल की सेहत है, अगर आप बच्चे पैदा करते ही रहोगे तो उनकी तरबियत कैसे होगी? निकाल निकाल के आपने मान लो माशरे में बच्चे छोड़ दिया और वहाँ खुराफात और हराम कामों में मुलविस हो गए, माशरे को गंदा कर रहा है, तो आपकी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ। इसलिए फैमिली प्लानिंग किया करें, उनकी तरबियत गैप रखें, उनमें अपनी बीवी का भी सेहत का ख्याल रखें। जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ से आपको इजाज़त है तो बिल्कुल जो चीज़ें अल्लाह रसूल ने हराम नहीं की, हमारी मजाल नहीं होनी चाहिए कि हम उन्हें हराम करें। और ये कुरान की आयत बता रहा मैं, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल कर दिया उसे हराम नहीं करना, और जिन्हें हराम कर दिया उन्हें हलाल नहीं करना, यही ईमान है। छोटी बच्चियों को ससुराल में खींचकर चूमने की आदत है जो मुझे बुरी लगती है, तो क्या किया जाए? अच्छा, इनकी कोई छोटी बच्ची हैं ससुराल में, इनकी मान लो जेठ देवर वगैरह, वो खींच के उसे अपनी तरफ जो है बच्चों को खींच के प्यार करते हैं, चूमते हैं, तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये क्या करें? मेरा बेटा, आपको बर्दाश्त करना चाहिए। आप दूसरे माहौल में पहुंच गए, अब आप वाला फैमिली वाला माहौल तो यहाँ नहीं होगा। क्या पता वो कितने मुखलिस लोग हैं आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ। इस तरह तो अगर आप उनसे बिगाड़ लेंगी तो आप तो आगे चल के आपको बहुत नुकसान होगा। आगे बच्चियों के रिश्ते भी होने होते हैं, और आपस में रिश्तेदारों में अगर अच्छे बच्चे हों तो बेहतर यही है कि आप बना के रखें और
बच्चे अपने आप निमट लेंगे। अगर वो बच्चे नहीं जाना चाहते तो धीरे धीरे प्यार से मोहब्बत से किसी दीनदार आदमी से उन्हें समझवाएं बड़ों को। और ये सवाल जिस तरह आपने मेरे से कर लिया, इसकी रिकॉर्डिंग जो है अपने ग्रुप में डाल दें तो आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये अच्छा अमल तो है नहीं। अगर बच्चे तैयार नहीं है हमारे यहाँ तो ज़बरदस्ती बच्चों को खड़ा कर देंगे दूसरों के सामने कि तुम पोएम सुनाओ, तुम अलहम्दुल शरीफ सुनाओ, तुम कलमा सुनाओ। बच्चा एक अपनी उम्र का वो है कि अगर फ्री विल से वो कुछ सुनाता है खुश होकर तो बहुत बढ़िया है, उसकी ग्रोथ होगी। और अगर वो आपके पास आना चाहता है फ्री विल से, आप उसे चूम भी लें। आपको बच्चों की मोहब्बत होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बच्चों को चूमना। लेकिन अगर बच्चे आपके पास नहीं आ रहे तो आप उन्हें ज़बरदस्ती खींचेंगे तो वो वाकई आपके बागी हो जाएंगे, फिर वो आपकी शक्ल देख के छुपने लगेंगे। तो इस तरह से तो उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन बेटा आप इसमें एतराज़ ना करना, वरना आप जो हैं उसमें नक्कू हो जाएंगे, अपने ख़ानदान में बदनाम हो जाएंगे, लोग कहने लगेंगे कि आप तकब्बुर वाले लोग हैं। और ये मुनासिब नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको इन लोगों के साथ गुजारनी होती है। हाँ, हिकमत से आप, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा जिसे मैंने हिकमत दी थी उसे खैर कसीर दे दिया। प्यार से मोहब्बत से थोड़े दिनों में बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी, लोग अपने आप एहतियात करने लगेंगे। बहुत सी वीडियो में लोग बच्चों को गोद में लेकर नमाज पढ़ते दिखते हैं, क्या ये जायज़ है? इनका सवाल यह है, बहुत सी वीडियोस में बच्चों को गोद में लेके नमाज पढ़ते हुए दिखते हैं लोग, क्या ये जायज़ है? भाई ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी उमामा को गोद में लेके नमाज पढ़ाते थे, पढ़ते नहीं थे, पढ़ाते थे। जब इमामत कराते थे, और जब सजदे में या रुकू में जाते थे तो उन्हें उतार देते थे, और जब फिर क़याम में खड़े होते थे फिर उन्हें गोद में ले लेते थे। तो अगर कोई मजबूरी ऐसी हो कि बच्चा आपका गुम होने का खतरा हुआ, आप मस्जिद में हैं, और या कोई और आपको खतरा है कि आपका बच्चा जो है वो कोई ज़्यादा और परेशान करेगा नमाजियों को, तो बिल्कुल आप उसे गोद में ले लें, जिससे वो भी काबू में रहे और आपकी नमाज भी ठीक हो जाए, बल्कि सुन्नत अदा होगी। लेकिन ये हर बार ये एक ही वाक़या है ये, तो इसे नज़ीर नहीं बनाना कि आप हर बार बच्चे को गोद में लें। कोई मजबूरी हो तब ये करेगा। मेरे शौहर मेरे साथ कौम लूत वाला अमल करते हैं, ज़बरदस्ती मना करूं तो मारते हैं, छोड़ने की धमकी देते हैं, 5 बच्चे हैं, क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है इस बहन का। मेरे पास इस तरह के केस आते रहते हैं। इनका सवाल यह है कि इनके शौहर कौम लूत वाला अमल इनके साथ करते हैं ज़बरदस्ती, और ये ना मना करें तो इनके साथ मारपीट करते हैं और छोड़ने की धमकी देते हैं। 5 बच्चे हैं, क्या करें? मेरा बेटा, हुजूर की हदीस ये है कि अल्लाह की इताअत में किसी मखलूक की इताअत नहीं करनी। आप उनसे ज़बरदस्ती ये बात करो कि मैं किसी भी कीमत पे इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा अल्लाह नाराज़ होता है इस बात से। और आप की बात अगर वो नहीं समझते और धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं, तो आप ये बात अपने बाप भाइयों को और घर वालों को बता दो। उसके बाद वो आपका इंतज़ाम करेंगे कि उससे या तलाक दिलाएंगे या उससे छुड़ाएंगे आपको, और आपका अलग इंतज़ाम करेंगे। 5 बच्चे हैं, आसान तो है नहीं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो सकता, घर वाले भी आपका साथ नहीं देते, तो आप इंशाअल्लाह ताला गुनहगार नहीं हैं। अल्लाह को आपकी मजबूरी पता है। अल्लाह किसी पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। प्यार से मोहब्बत से उन्हें समझाते रहें और उन्हें उस तरफ माइल करें जो सुन्नत तरीक़ा है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और अल्लाह का बताया हुआ तरीक़ा है कुरान में, कि वो उसी तरह से अपनी जो ख्वाहिश है उसे पूरा करें आपके साथ, और हराम काम से बचे रहें। ये हराम है, लेकिन ये आपके लिए तब तक हराम नहीं है क्योंकि आपका इसमें अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना आपकी कोई ख्वाहिश है। कुरान में अल्लाह ने यही बात कही है कि अगर तुम मजबूर हो तो तुम्हारे लिए जो है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है तो हराम भी तुम्हारे लिए हलाल अल्लाह कर देता है। कुरान की आयत का मफहूम है। तो आप मजबूरी में दिल से बुरा जानते हुए इस काम को, आप मजबूर हैं, कहीं जा नहीं सकती, घर वाले मान लो रखने के नहीं, अलग सेटअप नहीं हो सकता, 5 बच्चे हैं, पालने मुश्किल हो जाएंगे, तो आप इसलिए हथियार डाल दें और उन्हें प्यार से समझाते रहें। क्या पता अल्लाह करे कोई बात, उन्हें कोई ऐसा बयान मिल जाए कि वो चेंज हो जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए, तौबा कर ले। क्या सारे सजदे तिलावत एक साथ कर सकते हैं? इनका सवाल ये है, क्या सारे सजदाए तिलावत एक साथ कर सकते हैं? कुरान पढ़ा, कुरान ख़त्म हो गया तो एक 14 के 14 सजदे एक साथ कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं। असल में सजदा तिलावत जो है ये सुन्नत है, तो इसलिए बिल्कुल आप एक साथ भी कर सकती हैं या कर सकते हैं एक साथ, मतलब अलग अलग करने की कोई हाजत नहीं है। अलग अलग इसलिए कर लेते हैं कि जिससे याद रहें, और लोग करके इसे अपना, मतलब एक जो है आपने कहीं सजदा आया, हाथ के हाथ किया तो आपके सर से बोझ उतर जाएगा। क्या हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना भी हुजूर की सुन्नत है? इनका सवाल ये है, क्या हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? बिल्कुल भाई, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। उनके मसलक के लोग आज भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं,
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا. میں بھی اکثر ہاتھ چھوڑ کے گھر پہ نماز پڑھتا ہوں. تو بالکل آپ لوگ بھی ضرور پڑھا کریں, چاہے زندگی میں 2-4 بار ہی پڑھیں, ہر سنت پہ عمل کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. رات کا آخری پہر جس میں اللہ منادی کرتا ہے کتنے گھنٹے کی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے رات کا جو آخری پہر ہے جس میں اللہ آگے منادی کرتا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دوں گا, وہ کتنے گھنٹے کا ہے؟ اصل میں آخری پہر جو ہے نا وہ 3 پہر ہوتے ہیں. رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور صبح صادق تک. تو آپ اس مطلب سحری کا ٹائم ختم ہونے تک جو وقت ہوتا ہے, جیسے آج کل 6:30 بجے مان لو مغرب ہو رہی اور صبح کو 5 بجے ٹائم ختم ہو جاتا ہے, تو ان گھنٹوں کو آپ جوڑ لیں کہ 5.5 گھنٹے ہو گئے, 5 گھنٹے 10.5 گھنٹے ہو گئے, تو 3.5 گھنٹے شروع کے 2 حصے نکال دیں آپ 7 گھنٹے. آخر کے 3.5 گھنٹے جو ہیں انہیں آپ جو ہے وہاں سے شروع ہو گیا, یعنی کہ یہاں سے لے کے 1:30 بجے سے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے 5 بجے تک, 3.5 گھنٹے بنتے ہیں. یہ تہجد کا بھی ٹائم ہے, اللہ کے منادی کا بھی ٹائم ہے, مانگنے کا بھی ٹائم ہے, گڑگڑانے کا ٹائم ہے. اور یہ تہجد کی نماز ایسی لاڈلی نماز ہے اللہ کی کہ اپنی بات منوا ہی لیتی ہے. اور رمضان شریف میں تو یہ بہت آسان ہے. آپ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہو, کم سے کم 15-20 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, وضو کر کے آپ 2 کر کے 8 نفل پڑھ دو تہجد کے, اور 3 وتر آخر میں پڑھ دو. اگر آپ نے وتر امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھ لیے تو کوئی بات نہیں, لیکن 8 نفل یا اگر آپ پڑھ دو گے اور 1 مہینہ اگر آپ نے پریکٹس کر لی تو رمضان کے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو یہ پریکٹس آپ کی جاری ساری رہے گی. حدیث پاک میں کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے, آپ کہتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے. ان کا سوال یہ ہے حدیث میں تو کھڑے ہو کے پانی پینا منع ہے, میں بتاتا ہوں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے. بھائی بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے, کھڑے ہو کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے, کئی بار پیا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مستقل کھڑے ہو کے پیو, لیکن کوئی موقع ایسا ہو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, آپ جلدی میں ہیں, تو آپ اگر کھڑے ہو کے پی لیں گے. تو ہمارے یہاں جتنی شدت ہے نا اس معاملے میں کہ انگلی لے کے نکال دو یہ کر دو, وہ حدیث منسوخ ہو چکی, کیونکہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پی کے دکھایا. حضرت علی نے حضور کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا تھا, تو وہ زمزم پی رہے تھے حضور, تو جب سے حضرت علی نے ہمیشہ زمزم کھڑے ہو کے پیا ہے. جو آج آپ نے سنا ہوگا آپ بھی کھڑے ہو کے زمزم پیتے ہو, وہی سنت ہے حضرت علی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. تو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کبھی کوئی مجبوری ہو تو آپ کھڑے ہو کے پانی پی کے نکل جاؤ, لیکن مستقل آپ نے روٹین نہیں بنانا. روٹین آپ کا بیٹھ کے پانی پینے کا ہونا چاہیے. میڈیکلی بھی پانی بیٹھ کے ہی پینا جو ہے وہی فائدہ مند ہے. قرآن میں نماز کے لیے وضو کرنا ہے, کیا ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن میں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے, کیا ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کریں؟ نہیں بھائی, وضو کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہر نماز کے لیے. وہاں مقصد یہ تھا کہ جب بھی نماز پڑھو وضو کر لو. اگر تمہارا وضو نہیں ہے, مان لو آپ کا وضو ہے, آپ نے ظہر میں کیا اور آپ کو گیس نہیں بن رہی, جیسے آج کل رمضان شریف ہے, اس میں آدمی 4 نمازیں 3 نمازیں بالکل ایک وضو سے پڑھ سکتا ہے, بہت سعادت کی بات ہے. وہاں جو قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ جب بھی نماز پڑھو وضو کر لو, وہاں مقصد وہ تھا کہ بنا وضو کے نماز نہیں ہے. تو اگر آپ کا وضو ہے تو بالکل آپ نماز پڑھو, اور وضو نہیں ہے تو وضو کر کے نماز پڑھو. کیا اعتکاف بیچ میں مجبوری میں چھوڑنے پر قضا کرنی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اعتکاف میں بیٹھے بیچ میں مجبوری میں اعتکاف چھوڑنا پڑا, کیا اس کی بھی قضا کریں؟ نہیں بھائی, یہ تو نفلی عبادت ہے, نفلی عبادت کی کوئی قضا نہیں ہے. آپ نے جہاں اعتکاف چھوڑ دیا بس ٹھیک ہے, اتنے دن کا اللہ قبول کر لے, دعا کر کے آپ ہٹ جاؤ. آپ نے نیت بھی اگر 10 دن کی کری تھی آخری عشرے کی, اب بیچ میں آپ کی والدہ کی انتقال ہو گیا, طبیعت خراب ہو گئی, بیوی کی طبیعت خراب ہے, کوئی بچہ ہونے والا ہے, آپ کی ضرورت ہے گھر پہ, تو یہ تو نفلی عبادت ہے, آپ اگلے سال بھی کر لینا, لیکن اس کی کوئی قضا نہیں ہے. آپ بالکل چھوڑ کے آ سکتے ہو اگر کوئی بہت مجبوری ہو. ویسے تو آپ نے کمٹمنٹ کیا اللہ سے کہ میں 10 دن بیٹھوں گا, تو آپ کو پورا کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو بالکل آپ چھوڑ کے آ سکتے ہو, کوئی قضا نہیں کرنی بھائی. کیا حیض کے کئی سال کے چھوٹے روزے یا شوہر کی بیماری یا سفر کے چھوٹے روزے کو شوہر بیوی مل کر رکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے حیض کے کئی سال کے روزے چھٹے ہوئے ہیں اور شوہر کے بیماری کے کئی سال کے روزے چھٹے ہوئے ہیں, سفر وغیرہ کے, کیا دونوں مل کے رکھ لیں؟ نہیں بھائی, جس کے جو روزے چھٹے ہوئے ہوں گے اسے گنتی یہی اپنی رکھنی ہے. قرآن یہی کہتا ہے کہ گنتی رکھو اور بعد میں انہیں پورا کر لو. تو آپ کو جتنی بھی گنتی یاد ہو اس سے 1-2 زیادہ ہی رکھ لینا. یہ اللہ کا حق ہے, اس کا حساب ہونا ہے, فرض روزے ہیں. شوہر اپنے روزے خود رکھیں گے اور آپ اپنے روزے خود رکھیں گے. اگر شوہر اتنے بیمار ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو ان کے روزوں کا فدیہ دے دیں اور آپ اپنے روزے رکھ لیں. اگر آپ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سارے روزے رکھ لیں اب, تو آپ بھی فدیہ دے دیں, جب کبھی اور ہمت ہو تو روزے بھی رکھ لیں. ہمارے